Hello, Assalamu alaikum. Today we will see lesson number 28, lecture number 28 from the subject design and analysis of an algorithm. Today we will see n queens problem using oh my god मुझे क्या हो गया था हमको using backtracking. So let us understand what is n queen problem, and then we see how backtracking is used to solve this problem. Okay, say here we have a chessboard of a 4 cross 4. Say we have a 4 cross 4 chessboard, 4 cross 4. That means 1 2 3 4, 2 3 and 4. So how many cells we would be having? Around 16 cells, right? 4 cross 4 means 16 cells. In your syllabus we have to do 8 queens problem, but if you would understand n queens and 4 queens problem, you can most probably understand the 8 queens problem in a better way. Okay, so what I told you that say if we are having a chessboard of a 4 cross 4 chessboard which would be having 16 cells, and we would be given 4 queens like queen 1, queen 2, queen 3 and queen 4, obviously. ठीक है. So in the game of chess a queen will be there which will have its moves like horizontal moves, that is in a row and or in a column and or in a diagonal moves. We can move our queen in any way, row wise, column wise, diagonal wise. But here it is it's the same queen, and that queen we have to place them on this board. What we have to do is we have 4 queens and we have to place 4 queens on this chessboard in such a way that no 2 queens are under attack. What does that mean, they are under attack? What do you say that they are under attack? When 2 queens are in the same column or they are in the same diagonal, we have to avoid this, and we have to arrange them such that they are not under attack. 4 cross 4 चेस बोर्ड पे, सॉरी मेरी नाक थोड़ी ब्लॉक्ड है, सॉरी फॉर दैट. Anyway, I will repeat it once again. See, we have 4 queens and we have to place all the 4 queens on this chessboard in such a way that no 2 queens should under attack. What does that mean? कि हमारे पास कोई भी 2 queens सेम रो में नहीं होनी चाहिए, सेम कॉलम में नहीं आनी चाहिए और डायगनली भी वो सेम नहीं आनी चाहिए. डायगनल. So these are the 3 things which we have to keep in mind so that we can place all the 4 queens on this chessboard. Now the question is it possible to arrange them on this chessboard ताकि वो आपस में मतलब under attack ना हो? Yes, it is possible. We get some solutions in the case. ठीक है. So for example, this is an array and we will see कि कौन सी queen को हम किस जगह पे प्लेस कर सकते हैं. अगर हम पहले जनरली देखें, अगर हम ये कंडीशंस नहीं लगाएं तो बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास. अगर हम इसका स्टेट स्पेस ट्री बनाएं, सो अगर मैं बोलूँ मैं जी क्वीन 1 को फर्स्ट रो में डालूँगी, क्वीन सेकंड को सेकंड कॉलम में डालूँगी, बट इन द सेकंड रो, ओके, एंड देन क्वीन थर्ड को थर्ड कॉलम में डालूँगी एंड क्वीन 4 को फोर्थ कॉलम में डालूँगी. ठीक. या अगर मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं क्वीन 3 को फोर्थ कॉलम में भी डाल सकती हूँ और मैं क्वीन 4 को थर्ड कॉलम में भी डाल सकती हूँ. सिमिलरली मैं क्वीन 2 के बाद क्वीन 3 को क्या कहते हैं इसको, थर्ड कॉलम में डालूँगी. क्वीन 3 को सेकंड कॉलम में भी डाल सकती हूँ और मैं क्वीन 1 को फोर्थ कॉलम में भी डाल सकती हूँ.
there can be a multiple ways where I can put all these things in the chessboard. But the question is, which we have to do, that there are three conditions which we have to perform while putting all the four queens on this chessboard. I have to put the queens on this board in such a way that no two queens should be in the same row, in the same column, and in the same diagonal. So we cannot create a state space tree in a generalized way like I showed you here. So just we cannot do it like this. Okay, there is always, we can solve this problem by having the bounding function, and in this case our bounding function is that no two queens should be in the same row, column, and diagonal. Now how to generate a state space tree for four queens so that they will be placed on the 4x4 chessboard and with all these bounding functions? Let us create a state space tree and we will see how we can place them on the chessboard. Say for example, I will show you here. Wait. So this is a chessboard. Okay. 2, 3, 4, 1, 4. Okay. Say for example, I will place queen 1 in the first row and in the first column. ठीक, यहाँ पे स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं साथ साथ में. व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने क्या किया, मैंने क्वीन 1 को पहले रो में या पहले कॉलम में डाल दिया. ओके, डाला. कूल. नाउ कैन आई पुट क्वीन 2, Q2 लिखो या X2 लिखो जैसे मर्जी, इन द सेकेंड कॉलम. यहाँ पे तो डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि सेम कॉलम में आएगा. क्या मैं क्वीन 2 को यहाँ पे डालूँ? नहीं डाल सकती हूँ, बाउंडिंग फंक्शन है क्योंकि ये सेम डायगोनल में आ रहे हैं. तो दैट मीन्स बाउंडिंग फंक्शन है. आई कैन नॉट पुट क्वीन 2 इन दिस. ठीक, बैक ट्रैक करते हैं फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. कैन आई पुट क्वीन 2 इन द थर्ड कॉलम? यहाँ पे नहीं डाला, कि यहाँ पे डाल सकती हूँ? यस. क्वीन 1 पहले रो में, फर्स्ट कॉलम में. नो हमारे कंडीशंस के साथ कोई वायलेशन नहीं हो रही है. क्वीन 2 को मैं अगर थर्ड कॉलम में डाल दूँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आई कैन पुट, तो मैं डाल सकती हूँ. बचा मेरे पास क्वीन 3. क्या मैं क्वीन 3 को सेकंड कॉलम में डाल दूँ? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं डाल सकती हूँ. ठीक, क्यों? क्योंकि बाउंडिंग फंक्शन है, सेम डायगोनल नहीं होना चाहिए, राइट. सो आई कैन नॉट पुट क्वीन 2 इन द सेम डायगोनल. ओके. क्या मैं क्वीन 3 को, बैक ट्रैक करो, क्या मैं क्वीन 3 को फोर्थ कॉलम में डाल सकती हूँ? यहाँ पे अगर नहीं डाल पाई, क्या मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ? नहीं. अगेन यहाँ पे डालूँ? नहीं. क्यों? क्योंकि फिर से डायगोनल में आ रहा है. आई कैन नॉट, बाउंडिंग फंक्शन, यू कैन नॉट. ठीक, जब मैं ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, व्हाट आई कैन डू इज, लेट मी पुट क्वीन 2 इन द फोर्थ कॉलम. इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग क्वीन 2 हियर, चलो मैं क्वीन 2 को यहाँ पे डाल देती हूँ. ठीक, कहाँ पे डाल देती हूँ क्वीन 2 को? यहाँ पे, फोर्थ कॉलम में. ठीक है, इन द फोर्थ कॉलम. ओके, गुड. आफ्टर दैट क्या मैं क्वीन 3 को सेकेंड कॉलम में डाल सकती हूँ? क्या मैं अब क्वीन 3 को यहाँ पे डाल सकती हूँ? यस, मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि ना ही सेम रो में कुछ है, ना ही सेम कॉलम में कुछ है, ना ही डायगोनल में कुछ है, राइट. सो आई कैन पुट, डाल दिया मैंने. उसके बाद क्या मैं क्वीन 4 को फोर्थ कॉलम में डाल सकती हूँ? क्वीन 4 को अब मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती क्योंकि सेम कॉलम में तो है. क्या मैं क्वीन 4 को यहाँ पे डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती हूँ. क्यों? क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी Q2 है. सो बाउंडिंग फंक्शन, आई कैन नॉट बैक ट्रैक टू दिस प्लेस. इसके बाद कोई और ऑप्शन है?
मैं नहीं डाल सकती हूँ किसी भी जगह पे, पॉसिबल नहीं है। क्या मैं क्वीन 3 को इंस्टेड ऑफ द सेकेंड प्लेस, क्या मैं उसको थर्ड प्लेस पे डाल सकती हूँ इन द थर्ड कॉलम? नो, आई कैन नॉट डू दिस, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। बाउंडिंग फंक्शन, ठीक, नहीं पॉसिबल। बाउंडिंग फंक्शन नहीं पॉसिबल, बाउंडिंग फंक्शन नहीं है पॉसिबल, बाउंडिंग फंक्शन नहीं है पॉसिबल। तो दैट मीन्स अगर हम अभी तक का स्टेट स्पेस ट्री देखें, कोई भी ऐसा क्या कहते हैं इसको, मतलब मुझे नहीं मिला अरेंजमेंट सो दैट आई कैन प्लेस ऑल द 4 क्वींस ऑन द चेस बोर्ड, ताकि वो अंडर अटैक में नहीं आए। सो लेट अस डू वन थिंग, we will do a backtracking from this place to this place, then go back to this, then go back to this, then go back to the original place. हम क्या करेंगे, instead of putting the queen 1 in the first column, let us change this. For example, one, two, three, four. 1, 2, 3 and 4. Instead of putting queen 1 इन द फर्स्ट कॉलम, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वीन 1 को सेकंड प्लेस पे डाल देंगे। ठीक, कोई इशू है नहीं। क्या मैं क्वीन 2 को, क्यों 2 लिखो, x2 लिखो, कंफ्यूज नहीं होना, इट मीन्स क्वींस। x2 को, क्या मैं x2 को फर्स्ट प्लेस पे डाल सकती हूँ? नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे डालूंगी तो बाउंडिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, नहीं डाल सकती हूँ। बैक ट्रैक टू दिस प्लेस। क्या मैं क्वीन 2 को थर्ड कॉलम में डाल सकती हूँ? नहीं। क्यों? बाउंडिंग फंक्शन। सेकंड पे डाल सकती हूँ? नहीं, बाउंडिंग फंक्शन। क्या मैं क्वीन 2 को फोर्थ पोजीशन पे डाल सकती हूँ? हाँ, कोई इशू नहीं है, मैं क्वीन 2 को यहाँ पे डाल सकती हूँ, क्योंकि ना ही इस कॉलम में कुछ है, ना ही इस रो में कुछ है, ना ही डायगोनली कुछ है। ठीक, आई कैन ओके, दिस क्वीन 2, सॉरी, क्वीन 2 इन द फोर्थ प्लेस। अब कौन सी क्वीन को प्लेस करना है? क्वीन नंबर 3 को। क्या मैं क्वीन नंबर 3 को फर्स्ट प्लेस पे डाल सकती हूँ? क्या मैं क्वीन 3 को यहाँ पे डाल सकती हूँ? हाँ, आई कैन, क्योंकि ना ही डायगोनली कुछ है, ना ही सेम कॉलम रो में कुछ है, और ना ही सेम कॉलम में कुछ है। ठीक, तो कोई भी जो कंडीशंस हैं वो वायलेट नहीं हो रही हैं। उसके बाद कौन सी क्वीन मेरे पास बची? मेरे पास बची क्वीन नंबर, दिस इज क्वीन नंबर 2, सॉरी, हाँ, क्वीन नंबर 4। कैन आई प्लेस क्वीन नंबर 4 इन द थर्ड प्लेस? क्योंकि मैं क्वीन नंबर 2 को फर्स्ट पे नहीं डाल सकती, सेकंड पे भी नहीं डाल सकती क्योंकि कॉलम में ऑलरेडी है, सेकंड पे नहीं डाल सकती क्योंकि कॉलम में भी है, और डायगोनल भी वायलेट हो रहा है। कैन आई पुट क्वीन 4 इन द थर्ड प्लेस? येस, आई कैन। अगर मैं क्वीन 4 को यहाँ पे डाल दूँ तो दिस इज द वन पॉसिबल अरेंजमेंट विच आई कैन हैव, isn't it? Queen number 1 is in the first row, is in the second column, but violate कुछ नहीं हो रहा है, I can do this. So मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ that one possible way of putting my queens is like this: 2, 4, 3 and 2, 4, 1 and 3. So this is queen number 1, queen number 2, queen number 3 and queen number 4. I can place queen 1 in the second column, in the fourth column, then in the first column and then in the third column. So ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, बट यू नो बैक ट्रैकिंग में हमें हर एक पॉसिबल कंडीशन को फाइंड आउट करना है सो दैट वी कैन फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इट। अगर आप इसी तरीके से, अब ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, नाउ गोइंग बैक ट्रैकिंग टू द फर्स्ट प्लेस एंड पुटिंग क्वीन 1 इन थर्ड कॉलम, तो इन द थर्ड कॉलम वी कैन डू दैट एज वेल। नाउ यहाँ पे मेरा स्टेट स्पेस ट्री बहुत ही बड़ा बन जाएगा, सो बट आई कैन शो यू ओवर हियर, वेट। नाउ अगेन टू हमें हर एक पॉसिबल कंडीशन देखनी है, we don't have to only see one condition, because अब अगर हम सिर्फ स्टेट स्पेस ट्री ही बनाएं, यहाँ पे अब जगह नहीं है, तो से फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे क्वीन 1 को
थर्ड कॉलम में डालना है, सो आई कैन पुट इट ओवर हेयर। क्या मैं क्वीन 2 को फर्स्ट कॉलम में डाल सकती हूँ? येस, आई कैन पुट इट ओवर हेयर, कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। इन द फर्स्ट कॉलम कैन आई पुट क्वीन 2 इन द फर्स्ट कॉलम? नो। इन द सेकेंड कॉलम? नो, क्योंकि डायगोनल है। इन द थर्ड कॉलम? नो, आई कैन नॉट पुट। इन द फोर्थ कॉलम आई कैन डू, राइट? सो क्वीन 1 को, सॉरी क्वीन 3 को मैं कहाँ पे डाल सकती हूँ? क्या मैं इसको थर्ड में डाल दिया? यस। बचा 1, क्या डाल दिया? हाँ। क्या मैं 2 में डाल सकती हूँ क्वीन नंबर 3 को? नो, बाउंडिंग फंक्शन। क्या मैं क्वीन 3 को 3 में डाल सकती हूँ? नो, ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या मैं क्वीन 3 को फोर्थ प्लेस पे डाल सकती हूँ? कैन आई पुट इट लाइक ओवर हेयर? येस, आई कैन। सो इन द फोर्थ कॉलम आई कैन डू इट। आफ्टर दैट नाउ, इसके बाद कैन आई पुट क्वीन नंबर 4 इन द फर्स्ट कॉलम? नो। कैन आई पुट क्वीन नंबर 4 इन द सेकेंड कॉलम? यहाँ पे डाल सकती हूँ? येस, आई कैन डू, देयर इज़ नो इशू इन दैट। ये तो वायलेट नहीं हो रहा है, सो दैट्स इट। दिस इज़ वन मोर कंडीशन, दैट मीन्स आई कैन पुट क्वीन नंबर, सॉरी, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, देयर इज़ वन मोर पॉसिबल कंडीशन of putting these queens on the chessboard is I can put queen number 1 in the third place, queen 2 in the first place, queen 3 in the fourth place, and queen 4 in the second place. Similarly, you can check the other possible ways if there are, but for this problem there are only these two possible ways, so that we can put these queens. हम फिर से चेक कर लेंगे और एक कंडीशन पे, you have to check all the possible conditions. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Can I put queen number 1 in the fourth place? चलो डाल सकते हैं, कोई इशू है ही नहीं। क्या मैं क्वीन 2 को फर्स्ट प्लेस पे डाल सकती हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से कर सकते हैं। हाँ, मैं क्वीन 2 को यहाँ पे डाल सकती हूँ। क्या मैं क्वीन 3 को सेकंड प्लेस पे डाल सकती हूँ? सेकंड प्लेस पे डाल सकती हूँ? नहीं। क्या मैं क्वीन 3 को थर्ड प्लेस पे डाल सकती हूँ? नहीं, डायगोनल एलिमेंट वायलेट हो रहा है। क्या मैं क्वीन 3 को फोर्थ प्लेस पे डाल सकती हूँ? नहीं, वायलेट हो रहा है। गो बैक ट्रैक। इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस इन द फर्स्ट, बैक ट्रैक। क्या मैं क्वीन 2 को सेकंड प्लेस पे डाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, नो इश्यूज। उसके बाद क्या मैं क्वीन 3 को फर्स्ट प्लेस पे डाल सकती हूँ? नहीं, डायगोनल। 2 पे डाल सकती हूँ, सेम कॉलम। 3 पे डाल सकती हूँ, यहाँ से भी डायगोनल। यहाँ पे डाल सकती हूँ, यहाँ से एलिमेंट। नो, बैक ट्रैक। क्या मैं क्वीन 2 को यहाँ पे डाल सकती हूँ? नहीं, गो बैक ट्रैक। अब बैक ट्रैक करेगा कहाँ पे? इसके बाद तो जगह ही नहीं है। सो बाउंडिंग फंक्शन, बाउंडिंग फंक्शन, बाउंडिंग फंक्शन, बाउंडिंग फंक्शन, बाउंडिंग फंक्शन। सो these are the only two possible ways where we can put our queens on the 4x4 chessboard, so that no two queens come under attack. That means no two queens are in the same column, in the same row, and in the same diagonal. Thank you. I hope you understood it. Thank you and have a nice day.